اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفود کی شرکت۔ فریقین کی جانب سے مذاکرات انتہائی مثبت پیش رفت قرار۔ امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں اور میزبانی کو شاندار خراج تحسین۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا پائیدار امن کے لیے عزم کا اعادہ۔ مذاکراتی عمل میں سہولت کار کا کردار جاری رکھنے کا عزم۔ Along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ ضروری ہے کہ دونوں ملک سیز فائر جاری رکھنے کے عزم پر قائم رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کار کا کردار جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی میڈیا بریفنگ۔ We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات مکمل۔ ایران کو بہترین آفر دے کر واپس آ رہے ہیں۔ یہی ہماری حتمی اور بہترین پیشکش ہے۔ دیکھتے ہیں ایران ہماری پیشکش پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ کسی معاہدے پر نہ پہنچنا بری خبر ہے۔ ایران کو یقین دہانی کرانی چاہیے کہ اس کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی نیوز کانفرنس۔ امریکہ ایران مذاکرات۔ ایرانی وفد نے مذاکرات میں مثبت اور مستقبل پر مبنی تجاویز پیش کی۔ مذاکرات سے پہلے ایران نے نیک نیتی اور سنجیدگی کا اظہار کیا تھا۔ 21 گھنٹے طویل مذاکرات کے دوران ساتھیوں نے خوب محنت سے کام کیا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا سوشل میڈیا پر بیان۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کی مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا شاندار میزبانی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ 21 گھنٹے تک مذاکرات ہوئے۔ میزبان پاکستان کی طرف سے پل کا کردار ادا کرنے کی اہم کوشش ہوئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس: مذاکرات میں کردار پر برادر ملک پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کا پاکستان کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اسلام آباد مذاکرات۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی بڑی کامیابی۔ عالمی امن کاوشوں میں پاکستان پیش۔ امریکہ، ایران اور عالمی برادری کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ امن مذاکرات کی میزبانی پر شاندار خراج تحسین۔ پاکستان کی قومی قیادت کی پرخلوص کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پاکستانی قیادت کی انتھک کوششوں اور مؤثر سفارتکاری کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد سے واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انہیں رخصت کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امن مذاکرات میں شرکت کے بعد ایرانی وفد اسلام آباد سے روانہ۔ ایرانی وفد نے مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفد کو الوداع کہا۔
نزار امیری عراق کے صدر منتخب، صدر آصف علی زرداری کے نو منتخب صدر کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار، امید ہے نو منتخب صدر کی قیادت میں عراق استحکام ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا عراق کے ساتھ برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نکاسی آب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف، 15 شہروں میں جاری نکاسی آب کے منصوبوں پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم، مونسون سے قبل سیوریج لائن اور بارشی پانی کی نکاسی کے منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت، واسا پروجیکٹس کی تکمیل پر 752 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی تعمیر کرائے گا وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ اسلام آباد مذاکرات میں زیادہ تر نکات پر اتفاق رائے ہوا، مذاکرات مثبت سمت میں اہم پیش رفت، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فریقین کے درمیان مذاکرات میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، دونوں رہنما غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل شخصیات ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد نے اسلام آباد مذاکرات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان۔ پاکستان کی ثالثی میں اہم مذاکرات ہوئے، ایک ہی ملاقات میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے، فریقین کے درمیان پیغامات اور متن کا متعدد بار تبادلہ ہوا، ایران اور خطے میں جنگ کا خاتمہ مذاکراتی عمل میں شامل ہے، ایران اپنے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی میزبانی کو سراہتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان قریبی روابط اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا، ایران کی جانب سے پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی پرتپاک مہمان نوازی کی تعریف، علاقائی دوستوں اور پاکستان کے ساتھ رابطوں کے تسلسل پر مکمل اعتماد ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ جنگ بندی کا تسلسل اولین ترجیح ہونی چاہیے، مشرق وسطی میں جنگ بندی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے، فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، اسلام آباد مذاکرات عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بنے، آسٹریلوی وزیر خارجہ وینی وانگ کا اسلام آباد مذاکرات پر رد عمل۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران امن مذاکرات کی لمحہ بلمحہ کوریج، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی تجربہ کار ٹیم نے تاریخی ایونٹ کی بھرپور کوریج کو یقینی بنایا، مذاکرات اور معزز مہمانوں کی مصروفیات کی بروقت مستند خبریں اور تجزیے پی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر، سچائی کو عوام تک پہنچانا پاکستان ٹیلی ویژن کی اولین ترجیح۔ سبھی ممالک نے پاکستان کو مذاکرات سے پہلے بھی مبارکباد دی اور اس کی سفارتی کاوش کو سراہا، اور مذاکرات کے بعد بھی ان کی یہی توقع ہے کہ یہ مذاکرات آگے کنٹینیو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، یہ ایک ایسا ٹرائکا وجود میں آیا جس نے تمام محاذوں میں ہمیں کامیابی سے الحمدللہ ہمکنار کیا ہے۔ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس سے پاکستان کا امیج انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا ہوا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اسلام آباد امن مذاکرات پر دنیا پاکستان کی معترف، سفارتکاروں، مندوبین، دانشوروں، ملکی اور غیر ملکی صحافیوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ممتاز شخصیات کی عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور تحسین۔ پاکستان نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لا کر بھرپور کردار ادا کیا۔ اسلام آباد مذاکرات مشرق وسطی میں دیر پا امن کی بنیاد ثابت ہوں گے۔ پوری قوم کے لیے اعزاز ہے کہ پاکستان نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے، بہت بڑی جنگ کو روکا ہے۔ پاکستان نے امن کے لیے کوشش کی ہے اور ایک ثالث کے طور پہ ابھرا ہے۔ پاکستان نے جو حال ہی میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پاکستان عوام بہت خوش ہیں۔ اس جنگ کو کسی اچھے نتیجے پر پہنچا کر امن کی طرف کا جو رستہ ہے وہ ضرور نکلے گا، اور پاکستان اس میں بہترین طور پر اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات خطے میں امن کی جانب تاریخی پیش رفت، عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی کاوش قابل تحسین ہے، سیاسی اور عسکری قیادت نے عالمی برادری میں پاکستانی عوام کا سر فخر سے بلند کر دیا، عوام کے تاثرات۔
अमन है पाकिस्तान, फख्र से सर उठाया है, सफारती ताकत ने दुनिया को झुकाया है। अस्करी क़यादत ने हौसला दिखलाया है, अब हर दुश्मन ने सच को अपनाया। ये धूम नहीं, ये तारीख का सुनहरा बाब है। हर कामयाबी के पीछे कौम का इत्तेहाद है। जीत है हिम्मत, यकीन और ईमान की, यही पहचान है जिंदा दिल पाकिस्तान की। ये वतन हमारी शान है। अमन की जीत और पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी खुश। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की सिफारती ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का एक बार फिर मशरक़ वस्ता में पायदार अमन पर जोर। ताकत का मुजाहरा और जंग किसी मसले का हल नहीं, हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करना है। आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में अमन के लिए इक़दाम करें। पोप लियो का वेटिकन सिटी में अमन के लिए दुआया इज्तिमा से खिताब। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। खलीज जंग के तनासुर में कांग्रेस ने नाम निहाद विश्वगुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान की सालसी ने मोदी के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। मोदी अमेरिका के साथ एकतरफा तिजारती मुआहदे पर आमादगी के बावजूद कोई फायदा न उठा सके। मोदी पर होने वाली तनकीद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की अक्कास है। जयराम रमेश। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर की अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। एक बड़े आलमी तसादुम को रोकने में पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। पाकिस्तान मज़लूम अक़वाम बिलख़ुसूस कश्मीरियों के लिए उम्मीद की अलामत है। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसे एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को लपेट में ले लिया था। कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान को वो इज्जत मिली है जो हर मुल्क चाहता है। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल। कल से 19 अप्रैल तक मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पाकिस्तान पोलियो वायरस के खिलाफ जंग में अहम मरहले पर खड़ा है। मुल्क गिर पोलियो मुहिम में अवाम भरपूर ताउन करें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी। रावलपिंडी में सफारी ट्रेन के अपग्रेडेशन का इफ्तिताह। मयार की बेहतरी और सहूलतों की फराहमी से मुसाफिरों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात करवाकर अमन का दाई होने का सबूत दिया। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं और दुनिया अमन से ही कायम रह सकती है। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी। स्पीड और एड्रेनलिन आता है, इसको उठा के खेला है और गैप में बॉल चली गई। क्या होगा? स्वीप शॉट खेला हवा में दानिश साहब, कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया, इनको नजर आती है। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का 21वां मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड की हैदराबाद किंग्समैन को 154 रन का हदफ। डेवन कॉनवे के 45 रन, मार्क चैपमैन ने 42 रन की इनिंग्स खेली। किंग्समैन की जानिब से आसिफ महमूद ने 4 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद अली 2 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। Brilliant ball to find Nadia Khan. She plays it back across and the strike is a great one. आइवरी कोस्ट में फीफा सीरीज पाकिस्तान और मोरितानिया की विमेंस टीमें मद्दे मुकाबिल। सीरीज के पहले मैच में कौमी खवातीन टीम की तारीखी कामयाबी। तुर्कस्तान काइकर्स आइलैंड्स को 8-0 से शिकस्त दी। फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम पहली बार हिस्सा ले रही है। Ball across. Khan with the header.
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा, बार्सिलोना की स्पेनियोल को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की जानिब से फरहान टोरेस के 2 गोल। लीग टेबल पर बार्सिलोना 79 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कंवल। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं। पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मासूरी। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की सरबराही में आला सतह वफूद ने मुज़ाकरात में शिरकत की। फ्रीकैन ने मुज़ाकरात को इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों और मेज़बानी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकार का किरदार जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरानी वफ्द के साथ 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, ईरान को बेहतरीन पेशकश देकर वापस जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर ने शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर किया। रिपोर्ट कर रही हैं कंसा नकवी। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में अपना तामीरी किरदार अदा किया। Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. JD वेंस ने कहा कि ईरानी वक्त से 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात में मुतअद्दिद अहम मामलात पर तफसीली गौर किया गया। किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंचना अमरीका और ईरान दोनों के लिए बुरी खबर है। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up, but again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अमरीका का बुनियादी हदफ है कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान को यकीन दहानी करानी चाहिए कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। Their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer.
जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी वफ्द की क़यादत की। अमरीकी नायब सदर ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद से वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उन्हें रुखसत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने इस अज़्म का इआदा किया है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। किंज़ा नकवी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान का वफ्द इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस रवाना हो गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वफ्द को अलविदा कहा। ईरानी वफ्द में मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची शामिल थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा करते हुए कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकार का किरदार जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में इसहाक डार ने मुज़ाकराती अमल में शरीक दोनों मुल्कों के वफूद की तरफ से पाकिस्तान के अहम किरदार के एतराफ़ पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि ये ज़रूरी है कि दोनों मुल्क सीज़ फायर जारी रखने के आज़म पर कायम रहें। Along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Sayyid Asim Munir helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा को इस्लामाबाद मुज़ाकरात और फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ताकारी में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन के लिए जंगबंदी की पासदारी को नागुज़ीर करार दिया। उन्होंने खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुसलसल मकालमे और सफारतकारी की ज़रूरत को भी दोहराया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तानी क़यादत की अनथक कोशिशों और मौसर सिफारतकारी को दुनिया भर में सराहा गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। एक ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी और खित्ते में एक बड़ी जंग के खदशात मंडला रहे थे, पाकिस्तान ने एक जिम्मेदाराना और मुतहर्रिक सिफारती किरदार अदा किया और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हुआ। ईरान अमेरिका के दरमियान तनाव की एक तारीख है। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशों, मौसर हिकमत अमली और खित्ते में अपने असर रसूख की बदौलत दोनों मुल्कों में जंगबंदी और उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हुआ। Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. इस्लामाबाद मुज़ाकरात मुसलसल 21 घंटे जारी रहे, जिनमें क़यादत और माहिरीन की सतह पर तमाम इशूज पर बात हुई। फरीकैन की जानिब से मुज़ाकरात के तसलसल पर आमादगी को एक मस्बत इशारा समझा जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में कशीदगी को खत्म कराने और पायदार अमन की राह हमवार करेंगे।
عالمی سطح پر پاکستانی قیادت کی مؤثر سفارتکاری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ پاکستانی قیادت متعلقہ فریقوں اور خطے کے ملکوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی اور انہی انتھک کوششوں کے باعث اسلام آباد مذاکرات کے سنگ میل کا حصول ممکن ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک درخشندہ باب ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ عالمی امن میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانیاں ہوں یا عالمی تنازعات کا پرامن حل، پاکستان کا کردار ہمیشہ ایک ذمہ دار ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ مکالمہ اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل کا بہترین راستہ ہیں۔ دنیا اب اس بات کی منتظر ہے کہ یہ ابتدائی پیش رفت کس طرح ایک جامع معاہدے کی صورت اختیار کرتی ہے، ایک ایسا معاہدہ جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کی ضمانت بن کر ابھرے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایک ہی ملاقات میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ ایران اپنے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ اپنے بیان میں ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں اہم مذاکرات ہوئے، فریقین کے درمیان پیغامات اور متن کا متعدد بار تبادلہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کے درمیان اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ ایران اور خطے میں جنگ کا خاتمہ مذاکراتی عمل میں شامل رہا۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان قریبی روابط اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ علاقائی دوستوں اور پاکستان کے ساتھ رابطوں کے تسلسل پر مکمل اعتماد ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے نزار عامری کو عراق کی صدارت کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ نزار عابدی کی قیادت میں عراق استحکام، ترقی اور قومی ہم آہنگی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کی جانب سے عراق کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت نے عراق کے عوام کی مسلسل خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان بااعتماد ثالث کی حیثیت اختیار کر کے نہ صرف خطے میں امن قائم کرنے میں مدد دی ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنی سفارتی اہمیت بھی بڑھائی ہے۔ پاکستانی قیادت نے اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات میں ایک مثبت اور متوازن کردار ادا کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد فیصل راؤ۔ بین الاقوامی سیاست کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں کچھ شہر محض دارالحکومت نہیں رہتے بلکہ عالمی فیصلوں کے مراکز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ واشنگٹن، لندن، بیجنگ اور برسلز جیسے شہروں نے طویل عرصے تک عالمی سفارتکاری کی ذمہ داری سنبھالی، مگر اس وقت پوری دنیا کی توجہ اسلام آباد پر مرکوز ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی، علاقائی روابط اور عالمی طاقتوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی صلاحیت ہے۔ پاکستان نے بڑی مہارت سے ایک متوازن خارجہ پالیسی اپناتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ کہ دنیا کے تمام ممالک، آسٹریلیا سے لے کر کینیڈا تک اور یورپ سے لے کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک اور ادھر انڈونیشیا تک، کوریا تک، سبھی ممالک نے پاکستان کو مذاکرات سے پہلے بھی مبارکباد دی اور اس کی سفارتی کاوش کو سراہا، اور مذاکرات کے بعد بھی ان کی یہی توقع ہے کہ یہ مذاکرات آگے کنٹینیو کریں گے۔ پاکستان نے دنیا میں ایسا نام کمایا کہ پوری دنیا امن کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نادر موقع تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، یہ ایک ایسا ٹرائکا وجود میں آیا جس نے تمام محاذوں میں ہمیں کامیابی سے الحمدللہ ہمکنار کیا۔ Pakistan has come out looking really well. I think the hospitality of the country was on show, and I think everyone's really proud right now. And it's a proud moment for us as a Pakistani that we are mediating talks for a major conflict that has implication in the world economy. ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کا مثبت کردار نہ صرف موجودہ عالمی منظرنامے کے لیے اہم ہے بلکہ مستقبل میں بھی اس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ پاکستان کی مثبت سفارتی حکمت عملی نے خطے میں امن قائم کرنے میں مدد دی ہے، جس کے اثرات عالمی معیشت
और इंसानी जिंदगियों पर भी मुरतब हुए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली ये बातचीत न सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करेगी बल्कि आलमी सरमायाकारी और तिजारत के लिए भी साजगार माहौल बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान अक़वाम आलम में अमन का अलमबरदार के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। ये सफारती अहमियत महज इत्तफाक से हासिल नहीं होती बल्कि इसके पीछे क़यादत की मुसलसल मेहनत, दानिशमंदाना फैसले हैं। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। इसकी मंजिल आलमी क़यादत के उफ़क़ पर एक रोशन पाकिस्तान है। और आलमी सियासत के उफ़क़ पर पाकिस्तान एक बार फिर अमन के सफ़ीर के तौर पर उभरा है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान ने मुखलिसाना किरदार अदा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद सुफियान ने। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। यकीनी बनाने और मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को हर सतह पर सराहा जा रहा है। पूरी दुनिया में इस हवाले से पाकिस्तान का मुस्बत और तामीरी किरदार नुमायां हुआ है। मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि पाकिस्तान अफ्रीकैन के दरमियान राब्तों और तनाज़ात के पुरअमन हल की खातिर मौसर किरदार अदा करने की पॉलिसी पर कारबंद है। पाकिस्तान ने नेक नीति के साथ और खुलूस नीयत के साथ ये सारा इक़दाम किया। बहुत बड़ा एजाज है और पूरी कौम के लिए एजाज है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया है, बहुत बड़ी जंग को रोका है। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिश की है और एक सालिस के तौर पे उभरा है। इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी बरादरी की तवज्जो का मरकज बन गया है और पूरी दुनिया इस अहम किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। अमरीका, ईरान और आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान बहैसियत सालिस एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की जो मुखलिसाना कोशिशें हैं उनकी वजह से अमेरिका का और ईरान के जो वफूद है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठकर मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश की। अक़वाम आलम की जानिब से पाकिस्तान की कौमी क़यादत की पुरखुलूस कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है। ये एतमाद इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात के साथ साथ आलमी अमन के तकाज़ों को भी पेश नज़र रखता है। पाकिस्तान की ये कोशिशें इस असूल पर मबनी है कि तनाज़ात का हल बाहमी तामुन और मुज़ाकरात से निकाला जाए। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर में पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का लोहा मनवाने पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया है। तफसील से आगाह करेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशें आलमी सतह पर सराही जा रही हैं। इस्लामाबाद टॉक्स में पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने बेहतरीन सफारतकारी के जरिए दुनिया की दो कुव्वतें जो मुतहारिब थी और दुनिया ने उस जंग से दुनिया को नुकसान पहुंच रहा था, अमेरिका और ईरान को बेहतरीन सफारतकारी के जरिए मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को माना है कि पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब रही है। इस्लामाबाद टॉक्स में पाकिस्तान की कौमी हुकूमत की सफारती हिकमत अमली को न सिर्फ दुनिया भर में सराहा जा रहा है बल्कि खित्ते में पायदार अमन के लिए बेहतरीन पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद तरगढ़, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। अमरीका और ईरान के माबैन जारी जंग रुकवाने में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरिफ। पाकिस्तान की जानिब से अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तफसील जानेंगे अदनान शाह की रिपोर्ट में। अमरीका और ईरान के माबैन इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात को माहिरीन बैनुल अक़वामी उमूर सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। पेशावर की सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने भी दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के अमन के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है इसको डिकेड्स के लिए जो है ना दहाइयों तक इसको याद रखा जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा पैगाम इंटरनेशनली जाएगा कि पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी तौर पर अमन चाहता है बल्कि इंटरनेशनली भी अमन चाहता है। ये सिलसिला भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ बना है, जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आया था और वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात ने जिस शानदार तरीके से इंतज़ामात किए थे, तो आलमी मीडिया ने पहला तासुर तो इन इंतज़ामात के हवाले से लिया। पाकिस्तान में उस टॉक्स का होना, उनको होस्ट करना और उनके लिए एक चैनल खोलना, ये बहुत बड़ी बात है
और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो सालिस का किरदार अदा किया है वो एक अरसे तक याद किया जाएगा। सहाफ़ियों और शहरियों का कहना है कि कई दिहाइयों के तनाज़े का खात्मा एक नशस्त में मुमकिन नहीं, इसके लिए वक्त और मज़ीद नशस्तें दरकार है, जिसके लिए पाकिस्तान की काविशें जारी है और वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान अपनी नेकनियती पर मबनी कोशिशों में कामयाब होकर दुनिया को इस जंगी माहौल से निकाल लेगा। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मशरिक़ वस्ता समेत आलमी अमन के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े के बातचीत के जरिए हल के लिए पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी की तारीफ की है। तफसील बताएंगे शेर अब्बास। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे और तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने के लिए पाकिस्तान ने मुस्बित किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की क़यादत को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया और बातचीत के जरिए आलमी अमन को दरपेश खतरे को रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। जो पाकिस्तान ने कदम उठाया वो इंतहाई काबिल सताइश है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ही इस जंग को ख़त्म कराएगा। जो जंग रहा ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो सीज़ फायर करा सके 2 हफ्ते के लिए। पाकिस्तान एक अच्छी पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह से जो ना वो रोल अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को तरजीह दी है। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। इस्लामाबाद की मौसर और कामयाब सिफारतकारी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान की अजीम कामयाबी को खित्ते के अमन के लिए हवा का ताज़ा झोंका करार दिया है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान। कश्मीरी अवाम का ये मानना है कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान ने शानदार सफारतकारी के जरिए पूरी दुनिया के दिल जीत लिए हैं। मुज़ाकरात के नताइज से कतई नज़र ये बात हक है कि पाकिस्तान आलमी तौर पे एक जिम्मेदार और अमन के लिए कोशां मुल्क के तौर पे उभरा है। 2 ऐसी ताकतें हैं कि जो 47 साल से तकरीबन अपने मुखालिफ थे, जंगें कर रही थी, उनको एक टेबल पर पहली मरतबा बिठाना ही बहुत बड़ी बात है। न सिर्फ पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेचर जो बढ़ा है, बल्कि ये कोई मुनफरद ही वाक़या हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम भी रोशन हुआ। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम आज पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया चैनल देखें, उनकी हाई लेवल की उनकी मीटिंग्स के अंदर देखें, पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। कामयाब होना या नाकाम होना ये एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि आप 2 मुल्कों के ऊपर वहाँ उनको किसी टेबल पे लाएं, वो टेबल टॉक करें। कोई भी बड़ी जो जंग होती है वो सिर्फ एक बार जो है वो बैठने से कभी भी खत्म नहीं होती। ये एक इब्तदाई दौर था। कश्मीरी अवाम का ये मानना है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का तेजी से बेहतर होता हुआ तशख़्ख़ुस न सिर्फ आलमी अमन के लिए मस्बत पेशरफ्त है, बल्कि ये मसला कश्मीर के हल के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। इस्लामाबाद की सरजमीन ने यह पैगाम दिया है कि तनाज़ात का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात में पोशीदा है। पाकिस्तान का किरदार इस तमाम अमल में नहायत जिम्मेदाराना और मुतवाज़न रहा। तफसील बताएंगे अयाज असलम। इस्लामाबाद की सरजमीन ने यह पैगाम दिया कि बड़े से बड़े मसाइल का हल भी सिर्फ मकालमे के अंदर ही पोशीदा है। अगर ये सिलसिला इसी उम्मीद के साथ जारी रहा तो न सिर्फ खित्ते में इस्तेहकाम आएगा, बल्कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में ये खित्ता नई बुलंदियों को छुएगा। पाकिस्तान का किरदार इस तमाम अमल में इंतहाई जिम्मेदाराना रहा, एक ऐसा किरदार जो कि आलमी बरादरी के लिए भी एक मतवाज़न पैगाम रखता है। पाकिस्तान ने यह साबित किया कि जब नीयत में खुलूस हो तो बड़े से बड़े मसाइल भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल हो सकते हैं। याद रखिए, ये इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई उम्मीद, एक नए रास्ते का आगाज़ है। आलमी सियासी सूरत हाल हो या पेचीदा इलाकाई मामलात, पाकिस्तान सोशल मीडिया सार्फिन एक बार फिर अपने हिस्से मज़ाह और मीम्स बनाने की सलाहियत में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। चाहे वो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बर्फ पिघलने की खबर हो या नई दिल्ली की सिफारती तन्हाई, इंटरनेट पर मीम्स का एक तूफान बरपा है। डिजिटल मज़ाह के पीछे भी छुपे कुछ संजीदा हक़ाइक़ की तफसील बता रही हैं मरियम मलिक अपनी रिपोर्ट में।
आलमी सियासी सूरत हाल हो या पेचीदा इलाकाई मामला, पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन एक बार फिर अपने हिस्से मज़ा और मीम्स बनाने की सलाहियत में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। चाहे वो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बर्फ पिघलने की खबर हो या चाहे भारत की सफारती तन्हाई, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान बरपा है। दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम, पर क्या ये हमारे लिए जीत है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हालिया दिनों में सियासी और सफारती मौज़ूआत पर मीम्स का एक नया और दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। इस ट्रेंड का मरकज जहां आलमी ताकतों के बदलते तेवर हैं, वहीं पाकिस्तानी सारिफिन की तख्लीकी सलाहियतें भी उरूज पर हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सोशल मीडिया पर एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश किया जा रहा है। सारिफिन मुख्तलिफ फिल्मी सीन्स और दिलचस्प कैप्शंस के जरिए ये दिखा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने दो रवायती हरीफों को मेज पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया। दूसरी जानिब खित्ते में भारत की सफारती तन्हाई और नाकामियों समेत अहम मामलात में इसके जीरो किरदार को भी शदीद तंज का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से तख्लीकी एडिट्स और तंजिया मवाद तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जहां पाकिस्तान आलमी अमन के लिए सरगर्म है, वहीं नई दिल्ली सफारती तन्हाई का शिकार नजर आती है। पाकिस्तानी नौजवानों का ये मुनफरिद अंदाज आलमी सतह पर मुल्क के सॉफ्ट इमेज और सियासी शऊर की अक्कासी करता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफिन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ आलमी हालात पर गहरी नजर रखते हैं, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में भी मुस्कुराहटें बिखेरने का हुनर जानते हैं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर मीम कल्चर के हवाले से एक इंतहाई फाल और तख्लीकी मुल्क के तौर पर देखा जाता है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर खारजा को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी से मुताल्लिक अपनी जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद करें। नायब वज़ीर आज़म ने मकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को उजागर करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा और ख़ित्ते समेत आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत का सिलसिला बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम, ईरान अमेरिका जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात भारत पर बिजली बनकर गिरे। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना है। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाम निहाद विश्वगुरु मोदी को आड़े हाथों लिया। भारतीय जरीदे डेकन हेराल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वगुरु मोदी की अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मुसालहती कदम क्यों नहीं उठा सका। माहिरीन के मुताबिक ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार के हवाले से भारत में मोदी पर होने वाली तनकीद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की अक्कास है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम कादिर मरी के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। सदर ममलिकत टंडोला यार के करीब गांव रईस गुलाम कादिर मरी गए और मरहूम हाजी गुलाम कादिर मरी के भाई इस्माइल खान मरी, काम्बू खान मरी और दरिया खान मरी से फातिहा खाने की और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में निकासी आब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर करते हुए 15 शहरों में इन पर 24 घंटे काम करने का हुक्म दिया है। उन्होंने मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी की निकासी के मंसूबों की तकमील की भी हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले खुसूसी इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि सरगोदा, डेरा गाजी खान, गुजरात, ओकाड़ा, झंग, मुल्तान और सियालकोट में निकासी आब के मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। जहलुम, हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब और रावलपिंडी में भी ये मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। 15 शहरों के लिए 2265 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन्स और बारिशी पानी के निकास के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले मरहले में 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड सीवरेज स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे। सीवरेज और बारिशी पानी के निकास के मंसूबे की तकमील पर 752 किलोमीटर तवील सड़कें भी तामीर की जाएंगी। वासा मानसून से कबल बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसलेटिंग मुहिम भी शुरू करेगा।
اور اب کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی، جہاں بھارتی فورسز کی طرف سے مختلف اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے سامبا، کٹھوعہ، گاندربل اور کلگام اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ مقامی افراد نے سخت نگرانی اور بڑھتی ہوئی پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ کیلیفورنیا کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے آدھے سے زیادہ واقعات بھارت میں پیش آئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پابندیاں مقبوضہ جموں و کشمیر کے متنازع علاقے میں لگائی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے 2018 میں 134 مرتبہ انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر دی، جبکہ 2016 اور 17 کے دوران 100 سے زیادہ مرتبہ یہ سروس معطل کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق متنازع علاقے جموں و کشمیر میں 2012 سے 2017 تک پابندیوں کا 47% نفاذ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2016 میں نوجوان رہنما برہان وانی کی شہادت کے بعد علاقے میں تاریخ کی طویل ترین انٹرنیٹ بندش 203 روز تک جاری رہی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششوں نے ایک بڑے عالمی تصادم کو روکنے میں مدد کی اور پاکستان مظلوم اقوام بالخصوص کشمیریوں کے لیے امید کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی مسلسل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور جنوب مغربی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ مری سمیت شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں ریکارڈ کی گئی اور ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت مٹھی 42، شہید میں نذیر آباد، لسبیلا، چھور اور ٹھٹھا میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 29، لاہور 32، کراچی 40، پشاور 29، کوئٹہ 22، ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گلگت 27، اسکردو 20، مظفر آباد 30، جبکہ سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے مرحوم مہر رشید احمد دھمرایا کی پہلی برسی کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ تقریب میں سجادہ نشین دربار حضرت موسیٰ پاک شہید سید ابو الحسن گیلانی نے دعا کروائی اور مرحوم کی دینی اور سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے لاہور میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر ملک کی مجموعی صورتحال بالخصوص بلوچستان کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین نے ہر دور میں سیاسی استحکام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ عناصر ملک بھر میں کل سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ 19 اپریل تک جاری رہنے والی اس مہم میں 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام ملک گیر انسداد پولیو ویکسینیشن مہم میں بھرپور تعاون کریں اور یقینی بنائیں کہ ہر بچہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے فرنٹ لائن پولیو ورکرز کی خدمات کو بھی سراہا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان نے مذاکرات کی میزبانی کر کے امن کے داعی ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس کا دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ راولپنڈی میں رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کے ہمراہ سفاری ٹرین کی اپ گریڈڈ ٹریک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں اور دنیا امن سے ہی قائم رہ سکتی ہے۔ بھارتی عوام اپنے حکمرانوں کو سمجھائیں۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ اپ گریڈڈ ٹریک کا افتتاح ریلوے نظام میں بہتری اور مسافروں کو جدید سہولتوں کی فراہمی کی جانب اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے آخر تک 400 نئی کوچز کی اپ گریڈیشن مکمل کی جائے گی۔ معیار کی بہتری اور سہولتوں کی فراہمی سے مسافروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ منڈی بہاؤدین میں ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی پرامن کاوشوں پر پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام واسو میں پارٹی دفتر سے شروع ہوئی، جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت سنی علماء کونسل کے ضلعی صدر راؤ اشرف حسینی نے کی۔
रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए सिफारती कोशिशों को सराहा गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL की। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 21वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन को 154 रन का हदफ दिया है। जवाब में किंग्समैन की बैटिंग जारी है। कराची में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन स्कोर किए। डेवन कॉनवे ने 31 गेंदों पर 45 रन बनाए। मार्क चैपमैन ने 42 रन की इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास 22 और मोहम्मद फाइक 18 रन बना सके। किंग्समैन की जानिब से आसिफ महमूद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए। PSL के मैचेस PDV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नाज़रीन, फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम अपने दूसरे मैच में मौरितानिया के मद्दे मुकाबिल है। आइवरी कोस्ट में जारी फीफा सीरीज में कौमी खवातीन टीम ने अपने पहले मैच में टर्क्स एंड कैकोस आइलैंडर्स को 8-0 से मात देकर तारीख रकम की थी। पाकिस्तान ने मैच में शानदार खेल पेश करते हुए दोनों हाफ में 4-4 गोल स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से लैला बनारस और अक्सा मुश्ताक ने 2-2 गोल स्कोर किए। फीफा सीरीज में पाकिस्तान विमेन टीम पहली बार हिस्सा ले रही है। हाफ टाइम हो चुका है। मौरितानिया को 1-0 की बढ़तरी अब तक मैच में हासिल है। नेशनल विमेंस T20 चैंपियनशिप स्टार्स के नाम रही। लाहौर में खेले गए फाइनल में स्टार्स ने इनविंसिबल्स को 52 रन से हरा दिया। स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 156 रन स्कोर किए। तूबा हसन ने शानदार बैटिंग करते हुए 50 रन की इनिंग्स खेली। सिद्रा अमीन ने 30 रन स्कोर किए। इनविंसिबल्स की जानिब से अंबर कायनात और मोमिना इकबाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में इनविंसिबल्स की टीम 16.1 ओवर्स में 104 रन पर ऑल आउट हो गई। मुनीबा अली ने 27 रन बनाए। स्टार्स की तरफ से तूबा हसन और आयशा बलोच ने 3-3 खिलाड़ियों को चलता किया। जिम्बाब्वे विमेन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। एक रोज़ा मुकाबले 4, 6 और 9 मई को होंगे। T20 मैचेस 12, 14 और 15 मई को खेले जाएंगे। तमाम मैचेस की मेज़बानी नेशनल बैंक स्टेडियम कराची करेगा। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में ITF वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैंपियनशिप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। बैनुल अक़वामी इवेंट में 14 ममालिक के 24 बॉयज़ और 15 गर्ल्स खिलाड़ियों ने शिरकत की, जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक के प्लेयर्स शामिल थे। बॉयज़ सिंगल्स फाइनल में पाकिस्तान के अबू बकर तलहा ने हमवतन मिकाइल अली को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6-4, 6-7 और 7-5 से हराकर टाइटल अपने नाम किया। गर्ल्स सिंगल्स में रूस की वारवारा रुबसोवा ने चीन की यूया वांग को स्ट्रेट सेट्स में 6-6 और 6-4 से मात दी। रावलपिंडी में नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें घुड़सवारों ने महारत का बेहतरीन मुजाहरा किया। रंगारंग नेज़ाबाजी के मुकाबलों में मुल्क भर से आए माहिर घुड़सवारों ने अपनी शानदार कारकर्दगी से शायकीन के दिल जीत लिए। रिवायती खेल के इस सनसनीखेज मुकाबले में मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले के दौरान घुड़सवारों ने तेज रफ्तारी के साथ निशाने पर महारत से नेज़ा मारकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। शायकीन की बड़ी तादाद ने इवेंट में शिरकत की और हर कामयाब वार पर भरपूर दाद दी। मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसे मुकाबले न सिर्फ हमारी सकाफत को उजागर करते हैं, बल्कि नौजवान नस्ल को भी इस रिवायती खेल की तरफ राग़िब करते हैं। नेज़ाबाजी एक कदीम घुड़सवारी का खेल है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी समझी जाती है। इसकी इब्तिदा बर्रे सग़ीर, मशरक़ वुस्ता और वस्ती एशिया के जंगी दौर से जुड़ी हुई है। आज के दौर में
नेज़ाबाजी एक बाकायदा खेल बन चुका है और पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और मशरक़ वस्ता के कई ममालिक में बड़े शौक से खेला जाता है। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।